I'm really grateful to the organizers for giving me this opportunity to address this gathering on the occasion of a lecture instituted in the memory of a scholar. And I was just telling the media that the best way to remember, to pay our tribute to a scholar like Professor Das is to continue the pursuit of knowledge and pursuit of scholarship. There cannot be a better memorial to a genuine scholar. Now, coming to the topic of today, Professor Misra, while introducing me, mentioned the name of a novel in the language of chemistry, NACOHAS. Now, NACOHAS is an acronym created by me. You will not find this word in the dictionary of any language because it was coined by me. It's an acronym which stands for National Commission of Hurt Sentiments. And it creates a fantasy in which a National Commission for Hurt Sentiments has been created, and intellectuals who are in the habit of talking things which hurt the sentiments are punished for their crime. Because when you talk sense, when you question things, when you pursue the knowledge in the real sense, some way or the other you end up hurting sentiments. For example, if I were to question the claimed status of panacea for cow urine for anything, I will be hurting sentiments. If I question the stance of any religious tradition, I am hurting sentiments. So in this novel, the intellectuals are punished, castigated, humiliated for hurting, quote unquote, the sentiments. Therefore, the name of the novel, sir, National Commission of Hurt Sentiments. And in fact, this actually is the reflective, this is one of the symptoms of the crisis not only our society but the world as a whole is facing today. That is the moral and political crisis. Political crisis does not spring from the vacuum. It reflects, the present political crisis reflects a deeper moral crisis. And I want to explore to some extent the nature and the genesis of that crisis. Dharma, the idea of dharma was also mentioned by Professor Patil. And this reminds me of the last lamentation of the author of Mahabharata, Vyasdev. I mean, imagine a poet so magnificent, a poem so humongous and so brilliant and so exploratory of human nature. The poet, after completing such an epic, should have felt gratified, should have felt great achievement. But we find Vyasdev despondent at the end of Mahabharata. And he says that I have been telling all my life with hands raised that follow dharma, everything else will come after. Everything will follow naturally. Follow dharma and you will get earth, kam, moksha, everything. But nobody listens to me. This is Vyasdev at the end of Mahabharata. I have been telling people to follow dharma, nobody follows it. So the nature of crisis, when we talk of the crisis, let us not forget that this is not for the first time in human history that we are feeling a sense of moral crisis. The end of Mahabharata, the beginning of Mahabharata itself was the indication of a crisis. And the end of Mahabharata, in the language of the poet, itself ends with the note of a sense of crisis that nobody is listening to the voice of dharma. In contemporary language, we can say that nobody is listening to the voice of ethics and morality. And that is the crisis.
So when we talk of dharma, for example, in Indic tradition, whether it is Vedic tradition or it is Buddha tradition or Jain tradition, dharma does not mean a particular belief system. Dharma or Sanatan does not mean what it is propagated today. Sanatan does not mean a particular sect or a particular tradition of thought. Sanatan simply means the universal human values which everyone must follow. Of course, specific values also. The dharma of a teacher, the dharma of a student, the dharma of a civil servant, the dharma of a minister, or so on and so forth. But there are certain universal human values also. And what are those universal human values? The most important of them is ahimsa, compassion. It is not from a Buddhist text, but from Mahabharata, ahimsa paramo dharma. This is from Mahabharata. Mahabharata begins with this, ends with this. And ahimsa does not simply mean non-violence, it means much more. It essentially means fairness. So, to be fair, to be compassionate is the universal dharma. And it is the lack of this kind of understanding of dharma that Vyasadeva is lamenting that nobody wants to listen to me. Now coming to present day. No, if not all, I'm sure all of you must have heard this ghazal, this poem from the poet Shahryar, must have seen it performed in this famous film Umrao Jaan, sung by Asha Bhonsle and filmed on Rekha. And the ghazal is, the one of the couplet which I am going to read here, recite here is, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, हदे निगाह तलक जहाँ गुबार ही गुबार है. Where we have come, which is this place? There is fog, there is confusion as far as I can see. In fact, in Delhi, in a city like Delhi where I live, we do not have fog anymore, we have smog. So which kind of place is this? हम दिल्ली में ठंड का कोहरा देखने को अब तरस जाते हैं. हम ठंड का कोहरा नहीं देखते दिल्ली में, हम प्रदूषण का कोहरा देखते हैं. और सर्दी हो या गर्मी हो, दिल्ली में जैसा सूरज आप लोग यहाँ देख रहे हैं वैसा देखने को हम तरस जाते हैं. और इस पर अगर आप बात करें तो हम एंटी नेशनल कहलाते हैं. बच्चे अगर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करें तो 1 महीने के लिए जेल में ठूंस दिए जाते हैं. सो दिस इज अ ग्रेटर पॉल्यूशन. क्या जगह है दोस्तों जहाँ हदे निगाह तलक जहाँ गुबार ही गुबार है. This gubar is political crisis, and fundamentally it's the moral crisis. And why I call it moral crisis? Because it's not just Delhi or just India. If you recall, people of my age, when we were young, we took certain things for granted. We took the idea of universal human values for granted. We took the idea of world order for granted, even if it was not followed always. Certainly it was not followed always. But there were pressures and pulls from various directions, so a kind of balance of pressures was there. But today, the President of US captures the President of another country, charges him with what God knows what, and declares clearly that US will indefinitely control the production and sale of the Venezuelan oil. The oil of Venezuela is now US property. They want to capture Greenland also. They want a regime change in Iran also. And there is hardly any effective action against it. Action cannot be taken. Because with all his idiosyncrasies, President Trump is a democratically elected president. So what had happened to the electorate of USA when they elected this particular man? What kind of crisis does it reflect?
As I told you, till the last quarter of 20th century, there was a feeling that the world in 21st century is going to be much better. It's going to be more rational, more peaceful. The values of coexistence will prevail in spite of some tensions here and there. Philosophers like Steven Pinker were declaring till 10 or 12 years ago that war is a history now. There is no war in the world. Professor Pinker can say so because indeed there is no war in the northern part of the world. And for him, or maybe people like him, only that part of world matters. Otherwise, war is there. War is there in West Asia for so many years. War has been there directly or indirectly, physically or emotionally, in our own region also, South Asia. There have been tensions. And the idea of a peaceful world seems to be a distant dream now. Why it has happened like that? That is the question which all of us should ask ourselves. In 1932, Aldous Huxley had published a novel, The Brave New World. George Orwell's novel 1984 is more famous as a description of dystopia, but Aldous Huxley's description of dystopia is much more profound and philosophically disturbing. And I strongly recommend, if you have really not read it already, please read this novel, The Brave New World. In this novel, people are clearly divided between alphas and non-alphas. I am not going to refer to any contemporary political phenomenon here. I am just going to mention certain things from the Brave New World, and I hope, in fact, I believe that you can make necessary connections yourselves. So there are people who are alpha, there are people who are non-alpha. Alpha people have the right, the divine right to rule over everybody else. You can listen to statements from various political leaders and you can recall Brave New World. Then, in order to keep people on the right track, everybody is required to take a tablet of Soma every day. Huxley got this word Soma from Ved, of course. So you have to get a tablet of Soma every day so that you do not go astray and you follow the line. Future is bright, leader is right. अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए. So you are given a tablet of Soma every day. That's a must. What exactly our media is doing? I do not watch television anymore. For last so many years I have not been watching television. Of course I watch couple of YouTube channels or go through clips on social media, but our family is one of those families which does not purchase a television set these days. We do not have a television. Because we realized, all of us, that in order to keep our mental health intact, in order to keep particularly my wife, we both are 60 plus senior citizens, so keep our blood pressure under control, it is not sufficient to take medicine every day. It is also important not to watch television every evening. So we do not have television at our place. Look at television news. This is exactly what Aldous Huxley. मुझे भी बहुत सुविधा रहेगी. हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि जो हमारी टेलीविज़न न्यूज़ की हालत है वो आप देख लीजिए. रोज शाम को आपको सोमा की एक नहीं 10 टिकियाँ खिलाई जाती. दुनिया में कहीं कुछ होता रहे, आग लग जाए, लिटरली टट्टी मिला पानी पीने के कारण बच्चे मर जाएं,
आपके टेलीविजन की प्रायोरिटी ये है कि 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर टूटा था और फिर जब बना तो नेहरू मानी गई। नेहरू को मरे कितने साल हुए? मैंने एक मीटिंग में कहा था पिछले दिनों, माफ कीजिएगा ये कहने के लिए, तो एक नारा देते हैं, सभी पॉलिटिकल दल देते हैं नारा अपने कार्यकर्ताओं को, जो बूथ सबसे मजबूत। तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए नेहरू का भूत सबसे मजबूत अभी तक पिंड नहीं छोड़ रहा। On a serious note, what kind of sense of history it reflects? Yes, important. Every nation must have a sense of history. Every nation must have a sense of past, must have sense of memory of past, but not at the cost of consciousness of present. Not at the cost of your dreams of future. एक एप्रोकिफल किस्म का किस्सा है यानी मैं नहीं जानता कि सच है या झूठ, लेकिन किस्सा है और इंटरेस्टिंग किस्सा है। कहा जाता है कि एक भारतीय सज्जन जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से मिले। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का सेंस ऑफ ह्यूमर दुनिया में विख्यात है, हम सब जानते हैं। तो वो सज्जन मिले और उन्होंने बताना शुरू किया जैसे आज लोग बताते हैं कि साहब आप आज इतनी बातें करते हैं टेक्नोलॉजी और फलाना ठिकाना, हमारे पूर्वजों ने तो ये कर लिया था, हमारे पूर्वजों ने तो वो कर लिया था, हमारे पूर्वज तो एटम बम तब बना भी नहीं था, खैर जो भी उस समय उपलब्धि रही हो, हमारे पूर्वजों के पास टेलीग्राफ था, हमारे पूर्वजों के पास फलाना था, ढिमका था। तो जॉर्ज सुनते रहे और फिर बोले कि ठीक है, पूर्वजों के पास जो भी हो, आज की सच्चाई ये है कि आप मेरे देश के गुलाम हैं। आज की सच्चाई ये है, पूर्वजों ने जो भी तीर मारे हो। सो सेंस ऑफ हिस्ट्री इज वन थिंग and nonsense of history is quite another. In our society, we seem to be fast replacing sense of history with nonsense of history. ये क्राइसिस है, ये संकट है। संकट का एक दूसरा रूप, अब जैसे आप देखिए, जब मैं विद्यार्थी था और मेरे लिए तो अभी तक और मेरी पीढ़ी के बहुत से लोगों के लिए अभी तक किसी चीज़ की जानकारी ना होना संकोच का विषय होता था और अपने अज्ञान को मान लेना अच्छा माना जाता था। अब जैसे अगर मैं ये कहूँ कि भाई मुझे गंगाधर मेहर जी के बारे में कुछ नहीं पता था इस कैंपस में आने के पहले, तो इसको अच्छा माना जाएगा ना। मैंने पूछा आप लोगों से, मुझे बताया प्रोफेसर साहब ने कि अंग्रेजी में कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और उसी क्रम में मैंने कल कहा था पाठी जी से कि उत्तर भारत के लोगों की समस्या ये है कि उनका सारा सेंस ऑफ हिस्ट्री दिल्ली से शुरू होकर के पटना तक खत्म हो जाता है, तो आगे पीछे हिंदुस्तान है या नहीं है इसका उनको कोई परवाह नहीं रहती। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ, मुझे परवाह है। अपनी कबीर संबंधी रिसर्च के लिए मैं काफ़ी उस समय यंग था और 3-4 बार उड़ीसा में आया था, क्योंकि कबीर का उड़ीसा से कनेक्शन माना जाता है, आप लोग जानते हैं। मैं आया था पुरी और दूसरी जगहों पर। खैर, आज की हालत यह है कि अपने अज्ञान पर गर्व करना अच्छी बात मानी जाती है। दिस इज रिमार्केबल। आज जिस व्यक्ति को फिजिक्स का पी नहीं आता वो हमारे वाइस चांसलर साहब को फिजिक्स पढ़ा सकता है। जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि कबीर सिंह नाम की फिल्म आने के पहले भी हो चुके थे, वो मुझे कबीरदास पढ़ा सकता है। और लोग पढ़ाते रहते हैं, मैं चूंकि सोशल मीडिया पर हूँ तो मुझे काफ़ी ज्ञान मिलता रहता है लोगों से। अम्बर्टो इको ने एक बहुत मार्के की बात कही थी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का सबसे मज़ेदार कंट्रीब्यूशन ये है कि इसने एक तरह का इक्वलाइजेशन ऑफ कॉम्पिटेंस कर दिया है। नोबेल लॉरेट, ये अम्बर्टो इको के शब्द हैं, नोबेल लॉरेट और पब में बैठ के दारू पी के बकवास करने वाला इडियट दोनों बराबर मान लिए गए। और ये सच है। डिमोनेटाइजेशन के दिन याद कीजिए, हार्वर्ड के प्रोफेसर अमर्त्य सेन की बातों का जवाब देने के लिए आए थे 7 फुट के WWE के पहलवान खली। वो बता रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन कितनी बढ़िया चीज़ है। और अमर्त्य सेन तो हार्ड वर्क नहीं करते, हार्वर्ड में पढ़ाते हैं, वो हार्ड वर्क की महिमा क्या जाने।
I am not going into the merits of demonetization or demerits of it. I am going into this peculiar phenomenon where you can consider a sports person, good or bad, I do not know anything about wrestling, equivalent to a leading economist of the world. That's not fair, sir. That reflects a crisis. इसका ये मतलब नहीं है कि केवल एक्सपर्ट्स दुनिया चलाते हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस नाम की भी चीज़ होती है। उस कॉमन सेंस के ये अनुकूल है या प्रतिकूल है कि आप जिस बारे में नहीं जानते, इसको यूँ समझिए, मैं सोशल मीडिया पर और वैसे भी कमेंट्स करता रहता हूँ। अभी बजट आया और हर साल ये होता है, इससे मिलती जुलती चीज़ें होती हैं। अभी मुझसे पिछले 2-3 दिन पहले किसी मीडिया वाले ने वेनेजुएला क्राइसिस के बारे में पूछा। मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, जितना टीवी पर आके बोलने वाले जानते हैं उससे तो बेहतर ही जानता हूँ, लेकिन मैंने इनकार कर दिया बोलने से। मैंने कहा मैं इतना नहीं जानता कि इसके बारे में अथॉरिटेटिवली कुछ कह सकूँ कि वेनेजुएला में क्या हो रहा था, ट्रम्प साहब जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। लेकिन जो भी हो रहा हो, इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि किसी राष्ट्रपति को अगवा कर लेने का अधिकार किसी दूसरे देश को नहीं है, वो कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो। नो कंट्री हैज एनी बिजनेस टू पोक इट्स नोज इन द बिजनेस ऑफ अदर कंट्रीज, क्योंकि इस तरह से तो आप किसी भी प्रधानमंत्री को, किसी भी राष्ट्रपति को अगवा कर सकते हैं। इतना मैं कह सकता हूँ, इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं देखता हूँ रोज जिन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम वो ज्ञान बघारते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, मीडिया में, रोजमर्रा की बातचीत में, और दुर्भाग्य से अब यूनिवर्सिटीज तक में। यूनिवर्सिटीज तक में ये सीन मुझे देखने को मिले हैं कि लोग रोमिला थापर के इतिहास ज्ञान पर टिप्पणी कर रहे हैं कि उन्हें संस्कृत नहीं आती, और पूछ लिया जाए कि भाई साहब आपको कितनी आती है, तो मालूम पड़ा कि वो संस्कृत को संस्कृत बोलने के आदी हैं। This is a dangerous equalization of competence, and this is one of the factors of the crisis. एक फिल्म आई थी, मैं इसलिए ये सारे उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों आपके सामने। एक बात हम रियलाइज करें, ये हम मनुष्यों की आदत बन गई है कि जब तक किसी बहुत बड़ी अथॉरिटी की सील के साथ कोई चीज़ सामने नहीं आए, हम उसे मंजूर नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम खुद अपने विवेक का उपयोग करें और अपने आसपास देखें तो चीज़ें अपने आप में साफ हैं, उनके लिए किसी बड़ी अथॉरिटी की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसके फल पर मेरा कोई बस नहीं है। मैं यहाँ ये लेक्चर दे रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लग सकता है, आपको बुरा भी लग सकता है। आपने ये आयोजन किया ये सोच के किया कि मैं आ जाऊँगा, मैं हो सकता है ना आता, तो आपका सारा आयोजन और सारी मेहनत सब व्यर्थ हो जाती। फल क्या होगा ये सोचकर आप किसी काम के बारे में तय करेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। जो काम आप कर रहे हैं वो अपने आप में सही है या गलत है ये सोचकर तय करेंगे तो गड़बड़ कम होगी। आप नाकामयाब हो सकते हैं लेकिन अपनी अंतरात्मा के सामने आप साफ रहेंगे कि मैंने सही काम किया। I did the right thing, whether I failed or I succeeded, I benefited or I suffered, but the act in itself was moral. This is exactly what Gita says. Karmanyevadhikarasте ma phaleshu kadachan. You cannot control the results of your act, you can only control the act, or you can only judge the act. So judge whether the act in itself is moral or not moral. इसके लिए गीता आप पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गीता में ना कही गई होती तब भी ये बात सही होती और ये आप अपने अनुभव से भी जानते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। किसी भी चीज़ के एक से अधिक पहलू होते हैं। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कि पानी की ये बोतल आधी भरी है आधी खाली है। इधर से मुझे इसका रैपर हरे रंग का दिख रहा है, उधर से हो सकता है इसका रैपर सफ़ेद रंग का हो। किसी भी चीज़ को देखने के कई पहलू हो सकते हैं,
इसलिए ये दावा करना कि मेरा देखा हुआ पहलू ही एकमात्र सच्चाई है, ये गलत है। दूसरे पहलू भी हैं, उनसे भी इंटरेक्ट कीजिए, उनसे भी संवाद कीजिए, तब जाके आपको सच्चाई का थोड़ा पता लगेगा। और हालांकि जैसा हम जानते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ तो एब्सोल्यूट है इसीलिए कि उसे अंततः कोई पूरी तरह नहीं जान सकता। सो वी कैन ओनली हैव द हाईएस्ट पॉसिबल डिग्री ऑफ रिलेटिव ट्रुथ and we can achieve it only through the act of dialogue between ourselves, not only as individuals but also as cultures, as civilizations and as religions. It's only a dialogue which helps you to get closer to the truth. ये बात अगर भगवान महावीर ने ना कही होती तब भी सच होती। जैन दर्शन में इसको स्यादवाद कहा जाता है और ये जैन दर्शन की सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है दुनिया की फिलॉसफी। Please don't make a claim of absolute truthfulness of your own belief. It's always relative, it's always comparable with other truths. अति किसी भी चीज की बुरी होती है। हिंदी में एक कहावत है और मैं दावे से कह सकता हूं कि इससे मिलती जुलती कहावत उड़िया में भी होगी कि अति को भलो ना बरसबो, अति की भली ना धुप, अति को भलो ना बोलबो, अति की भली ना चुप। बहुत बारिश भी अच्छी नहीं होती और धूप ही धूप बनी रहे ये भी अच्छा नहीं है। आप चुप्पी मारे बैठे रहें ये भी ठीक नहीं है और बड़बड़ करते चले जाएं ये भी ठीक नहीं है। मध्य मार्ग, सम्यक, भगवान बुद्ध ना कहते तब भी ये बात सच होती। लेकिन ये हमारी कमजोरी है शायद या हमारी ताकत है, जो भी आप इसे कहें, लेकिन हम अपनी मॉरल क्राइसिस इसलिए इस समय फेस कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल ह्यूमन कॉमन सेंस और जो हमारा विवेक सदियों से चला आ रहा है उससे कहीं ना कहीं हम विचलित हो रहे हैं, उसको हम कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे हैं, भावनाओं के आवेग में, मूर्खता के वश में, जो भी आप कहें। कुछ वर्ष पहले एक फिल्म आई थी और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, OTT पर उपलब्ध थी वो फिल्म, शायद अभी भी हो। एडम मैके की फिल्म थी डोंट लुक अप। इसमें होता यह है कि अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च कर रही है लड़की एस्ट्रोफिजिक्स पर, और वो किसी बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए इसको देखती है धरती की तरफ, हेवनली बॉडी को, और उसको लगता है कि अगर टकरा गई धरती से तो महाप्रलय हो जाएगी क्योंकि इट्स कमिंग फास्ट, वेरी फास्ट। तो वो और उसके प्रोफेसर साहब अमेरिकन प्रेसिडेंट से, पोटस से अपॉइंटमेंट लेते हैं, कोशिश करते हैं लेने की। तो पहले तो अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत होता है। उस फिल्म में कुछ बड़े मज़ेदार कमेंट थे। अपॉइंटमेंट देने के पहले पोटस का ऑफिस पूछता है कि ये आईवी लीग यूनिवर्सिटी है या नहीं है। नहीं साहब, आईवी लीग तो नहीं है, स्टेट की यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी वाले क्या करेंगे प्रेसिडेंट से मिलकर? रिसर्च तो आईवी लीग में होती है, हार्वर्ड में, प्रिंसटन में, कोलंबिया में, बाकी रिसर्च कहाँ होती है। लेकिन किसी तरह खैर उन बेचारों को अपॉइंटमेंट मिल जाता है, वो बताते हैं। तो पोटस, भाई द वे उसमें पोटस औरत है, स्त्री हैं। मैरिल स्ट्रीप ने वो रोल किया है, कमाल का रोल किया है, तो वो स्त्री हैं। तो उन्हें बात समझ में आती है, वो थोड़ी चिंतित होती हैं। लेकिन उनका जो मल्टी बिलियनियर फ्रेंड और फंडर है वो उनसे कहता है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग दी फ्रेज वर्बेटिम, और उस फ्रेज से मिलता जुलता कोई फ्रेज आपको हिंदुस्तान में याद आ जाए तो मेरी गलती नहीं है। वो पोटस का फ्रेंड कहता है कि इनफैक्ट हियर इज अ अपॉर्चुनिटी इन द क्राइसिस, आपदा में अवसर। वो कहता है हियर इज अ अपॉर्चुनिटी इन द क्राइसिस, और अपॉर्चुनिटी इन द क्राइसिस ये है कि आप और ज़बरदस्त ढंग से अपना कैंपेन कीजिए, इसको डिनाई कीजिए, आप कहिए कि सब बकवास है। दूसरी तरफ एक ऐसी स्पेसशिप हम बनाते हैं जिससे हम आउटर स्पेस में चले जाएंगे, जो हमारे और हमारे मित्र होंगे, बाकी दुनिया का जो होगा सो होता रहेगा। और साथ में ये भी कीजिए कि जो दूसरे स्पेस टेक्नोलॉजी से संपन्न देश हैं, ये उनका षड्यंत्र है ताकि अमेरिका को कमज़ोर किया जा सके। तो रूस पर आरोप लगाइए, फ्रांस पर आरोप लगाइए, चीन और भारत पर आरोप लगाइए। ये सब मैं उस फिल्म का दोहरा रहा हूँ, अपनी ओर से कुछ नहीं बना रहा हूँ इसमें। और इसलिए आप जो है इसको अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस, आपदा में अवसर बना लीजिए। तो हालत ये होती है कि प्रेसिडेंट के लोग कैंपेन लॉन्च करते हैं, ये साइंटिस्ट
और इसके साथ ही लोगों के साथ कहती हैं कि भाई प्लीज़ लोग का कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी बात मत मानो। घर की छत पर खड़े हो जाओ तो तुम्हें दिख जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कोई चीज़ बड़ी तेज़ी से धरती की तरफ आ रही है। तो प्रेसिडेंट और वहीं से फिल्म का टाइटल लिया गया है और पूरा अमेरिकन मीडिया कैंपेन लॉन्च करता है, डोंट लुक अप। ऊपर की ओर देखना एंटी अमेरिकन एक्टिविटी है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के मार्ग में बाधक है, सो डोंट लुक अप। पीपल फॉलो दैट एडवाइस बिकॉज टेलीविजन यू नो इज प्रेजेंट डेल्फीज ऑरेकल, जो वो कह देगा वो फाइनल है। नतीजा जो होना है, जो होता है, आप कल्पना कर सकते हैं क्या होता है, महाप्रलय हो ही जाती है। सो दिस डिनायल of your own understanding, your own experience, please think about it. आपका जो अपना अनुभव है उसको आप डिनाई कर देते हैं। This is the basis of moral and political crisis. When I chose this topic, I was not planning to talk about this particular political act or that particular political act or this president or that president. No. That was not my intention, and that is not my intention. I am not going into individuals, I am not going even into the individual specific incidents. I want to underline the common factor, the fundamental, the issue which is there. और जो मैंने आपसे कहा, भाई साहब ये संकेत तो नहीं है कि मैं बहुत बोल गया? उस लेख का शीर्षक है ऑन स्टुपिडिटी, बेवकूफ़ी के बारे में। अब 1937 में यूरोप की जो हालत थी उसको देखते हुए इस लेख का शीर्षक बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि बाद में कोई कितने भी गुण गाने लगे, उस समय हिटलर और मुसोलिनी के प्रशंसक सारे यूरोप में पाए जाते थे, अंग्रेज़ों में भी पाए जाते थे, बहुत सारे हमारे देश में भी पाए जाते थे, हमारे देश में अभी भी पाए जाते हैं। तो उन्होंने लेख लिखा था ऑन स्टुपिडिटी, और उसमें दो तरह की स्टुपिडिटी होती है। एक होती है ऑनरेबल स्टुपिडिटी। ऑनरेबल स्टुपिडिटी का मतलब है जो वाकई जेन्युइनली मूर्ख है, जिसका मूर्ख होने में कोई अपराध नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है या जो विभिन्न कारणों से मूर्ख है। उनका ये ऑनरेबल स्टुपिडिटी क्यूरेबल है, इसका इलाज किया जा सकता है। स्टुपिडिटी या इग्नोरेंस, जाहिर है कि दुनिया का कोई आदमी सब कुछ नहीं जानता। कुछ मामलों में बड़े से बड़ा ज्ञानी स्टुपिड हो सकता है, कोई व्यक्ति बहुत जानकार हो सकता है किसी फील्ड का। नहीं देखिए क्या है सर, मैं चुप हो जाता हूँ, आप बात कर लें, बता दीजिएगा, फिर मैं बोलूँगा उसके बाद। आने कर लीजिए प्लीज, मेरा बोलना कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन शायद औरों का सुनना महत्वपूर्ण है, राइट? तो उन्होंने कहा एक होती है ऑनरेबल स्टुपिडिटी विच इज क्यूरेबल, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। और सही बात है, मैं उड़िया नहीं जानता, लेकिन अगर तय कर लूँ तो शायद साल 6 महीने में 2 साल में उड़िया सीख जाऊँगा। उड़िया पोएट्स को, उड़िया लिटरेचर को खुद पढ़ने लगूँगा बिना किसी की मदद के। तो दैट इज़ वन थिंग, दैट्स लैक ऑफ नॉलेज और कॉम्पिटेंस। कुछ लोगों में होता है लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस कम होता है, कुछ में ज़्यादा होता है। कुछ लोग लैंग्वेज बड़ी आसानी से सीख जाते हैं, कुछ को लैंग्वेज सीखने में बहुत वक्त लगता है। दैट इज़ वन। उन्होंने कहा दूसरी स्टुपिडिटी होती है इंटेलिजेंट स्टुपिडिटी, वो ऑनरेबल स्टुपिडिटी से अलग है। इंटेलिजेंट स्टुपिडिटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है और उसके मास प्रोडक्शन के जरिए ही अथॉरिटेरियनिज्म की जमीन तैयार होती है। रॉबर्ट म्यूसियल इज राइटिंग दिस इन 1937 and we all know Hitler had come to power through democratic election in 1931 and in 1939 World War started. Robert Musil is pointing out that there is another kind of stupidity which is intelligent stupidity, which the intelligent people produce for their own ends.
और उस स्टुपिडिटी में भी बाद में मैं सोचने लगा इस पर, और मैंने भी एक लेख लिखा बाद में, 2-3 साल पहले द वायर में लेख छपा था वो, और उसका शीर्षक था द एवेलेंस ऑफ स्टुपिडिटी, बेवकूफ़ी का सैलाब। तो उसमें मैंने इस पर विचार किया कि इंटेलिजेंट स्टुपिडिटी भी 2 तरह की हो सकती है। एक इंटेलिजेंट स्टुपिडिटी वो होती है जो मिसाल के तौर पर आप फिल्मों में देखते हैं, एक हीरो आता है और 50 गुंडों को एक झटके में साफ कर देता है, कभी कभी जोश में आके खंबा उखाड़ देता है, कभी जोश में आके हैंडपंप उखाड़ देता है। ऑडियंस भी जानती है कि यह संभव है, वो करने वाला एक्टर भी जानता है कि यह संभव है, फिर भी हम एंजॉय करते हैं। और जो अगर उसकी नकल करने लगे और सचमुच खंबा और हैंडपंप उखाड़ने लगे तो उन्हें हम स्टूपिड ही कहते हैं। क्यों वो नहीं करते? वो लोग जानते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ फैंटेसी, उस फैंटेसी का हम भी हिस्सा थे 3 घंटे के लिए, वो एक्टर भी हिस्सा था और लोग भी थे। तो दैट इज वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंट स्टूपिडिटी। दूसरी इंटेलिजेंट स्टूपिडिटी वो होती है जो जानबूझ के जनरेट की जाती है ताकि आप पावर स्ट्रक्चर्स को क्वेश्चन ना कर सकें, जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको क्वेश्चन ना कर सकें, और उसको क्वेश्चन करने पर आपको खुद को अपने आप पे स्वर्म आने लगे। दैट इज द मोस्ट डेंजरस काइंड ऑफ स्टुपिडिटी। किसी नगर में एक मेडिकल कॉलेज खुलता है, लोग सेलिब्रेट करते हैं। हमारा देश उस जगह पहुंच चुका है जहां एक मेडिकल कॉलेज के बंद होने को सेलिब्रेट किया जा रहा है। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, नाच रहे हैं, ढोल ताशे बजा रहे हैं कि बंद हो गया। कैन यू इमेजिन दिस? आज संबलपुर में कोई आईआईटी खुले, आईआईटी बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, आप सब खुश होंगे, हम भी खुश होंगे, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि संबलपुर में आईआईटी खुले और बंद हो जाए और लोग सेलिब्रेट करें कि अच्छा हो गया। कैन यू इमेजिन दिस? No need to imagine. This has already happened in this country. Only couple of days ago. So this is intelligent stupidity. People have been made to act the way they are acting today. And that is a crisis. That's a very, very serious crisis. क्योंकि ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, आप देखें जो मैंने शुरू में बात कही कि 20वीं सदी की आखिरी दिनों तक 1980-90 तक ये था कि कुछ चीज़ें यूनिवर्सल हैं, कुछ चीज़ों को सब मानेंगे। वो आइडिया ऑफ यूनिवर्सलिटी, अब खत्म होता जा रहा है। ये मानने में लोगों को तकलीफ हो रही है कि कुछ चीज़ें सबके लिए अच्छी हैं, कुछ चीज़ें सबके लिए बुरी हैं। अपने अपने धर्म और संस्कृति के नाम पर अजीब अजीब तरह की चीज़ों की वकालत की जा रही है, और जो वकालत में साथ नहीं है वो इस्लामोफोब हैं, वो एंटी इंडिया हैं, वो एंटी हिंदू हैं, हिंदूफोब हैं, वो मागा के खिलाफ हैं। इट्स अ पिक्यूलियर सिचुएशन, इट्स इंडीड अ पिक्यूलियर सिचुएशन। और इसी से वो पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा होता है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जिसमें एक अजीब तरह की हेगेमनी, और बेधड़क आदमी कह सकता है कि हम ग्रीनलैंड पे भी कब्जा कर लेंगे, हम रिजीम चेंज कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, वहाँ भी कर देंगे, फलानी जगह भी कर देंगे, और कोई उसको कंट्रोल करने वाला नहीं। ईरान पर असर उनका तब बदला जब चीन ने कह दिया कि हम चुप नहीं बैठेंगे, और चीन ने भी कोई बड़े आल्ट्रुस्टिक वजह से नहीं कहा है। ईरान अंततः तेल का भंडार है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस तरह से वैल्यूज अजब तरह से डिफाइन हो रही हैं, यूएनओ, एक ज़माने में कहा जाता था यूएनओ इज अ डिबेटिंग क्लब। इट्स नॉट इवन अ डिबेटिंग क्लब नाउ, इट्स ओनली अ हॉलीडे रिसोर्ट। इट्स नॉट इवन अ डिबेटिंग क्लब नाउ, देयर इज नो डिबेट वर्थ द नेम, कोई सुनने वाला नहीं है। ये जो स्थिति बनी है, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। जाहिर हम साधारण लोग हैं। इसमें मैं 2 बातें कहना चाहता हूं दोस्तों। एक तो ये कि हम अपनी जहाँ तक खुद की सामर्थ्य है वहाँ तक इस इंटेलिजेंट स्टुपिडिटी के विक्टिम और इसको तैयार करने वालों में से होने से इनकार कर सकते हैं। वी कैन रिफ्यूज टू बी विक्टिम ऑफ दिस स्टुपिडिटी एंड वी कैन रिफ्यूज टू बी मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दिस स्टुपिडिटी।
दैट इज द थिंग विच वी ऑल कैन डू। और उसे करने के लिए केवल एक चीज को याद रखने की जरूरत है। जब मैं विवेक कहता हूं, मैंने बार बार ये शब्द इस्तेमाल किया, विवेक, मेरा या आपका विवेक केवल उस ट्रेडिशन से डिटरमाइन नहीं होता जिसमें आप पैदा हुए। विवेक बाय डेफिनेशन यूनिवर्सल है। दुनिया भर की ट्रेडिशंस, सिविलाइजेशंस, कल्चर्स, रिलीजन्स, सब में कुछ ऐसा है जिनसे मैं सीख सकता हूं, और उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं है जो अपने आप में परफेक्ट हो। महात्मा गांधी से जब एक बार पूछा गया कि आप कहते हैं कि सभी धर्म एक ही बात कहते हैं, सभी में एक सी चीज़ है, ये है वो है, तो दुनिया में इतने सारे धर्म क्यों हैं? महात्मा गांधी के उत्तर की आप कल्पना कर सकते हैं क्या था? महात्मा गांधी ने कहा कि यस, देयर आर सो मेनी रिलीजन्स इन वर्ल्ड एंड ऑल ऑफ देम आर ट्रू, बट एट द सेम टाइम, एंड माइंड द वर्ड्स नाउ, महात्मा गांधी, ऑल ऑफ देम आर इम्परफेक्ट। दुनिया का कोई धर्म अपने आप में समग्र, संपूर्ण, एब्सोल्यूट नहीं है। And therefore every religion, and you can replace the word religion with culture, civilization, individual, whatever, has to learn from each other through dialogue. मेरा विवेक, मैं हिंदी भाषी हूं, क्या मेरा विवेक केवल उससे तय होगा जो हिंदी भाषा में लिखा गया है? क्या अंग्रेजी में लिखे से मेरा विवेक नहीं प्रभावित होगा? फ्रेंच में लिखे से नहीं प्रभावित होगा? उड़िया और बांग्ला में लिखे से नहीं प्रभावित होगा? फकीर मोहन सेनापति तो हिंदी में नहीं लिखते थे, लेकिन वो उन लेखकों में से हैं जिनको मैंने बचपन में पढ़ा, जिनके कारण मुझे उड़ीसा के ग्रामीण और आदिवासी जीवन का एक सेंस प्राप्त हुआ। मेरे विवेक के निर्माण में उनका योगदान कुछ कम है क्या? तो विवेक किसी एक धर्म तक, किसी एक सभ्यता तक, किसी एक संस्कृति तक सीमित नहीं है। मेरा विवेक केवल हिंदू ट्रेडिशन से संभव नहीं है। मेरा विवेक केवल भारतीय ट्रेडिशन से संभव नहीं है। उसमें यूनानी चिंतन परंपरा का भी योगदान है, आधुनिक यूरोप का भी योगदान है, चीन का भी योगदान है, अरब का भी योगदान है, ईरान का भी योगदान है, और इस सब के बारे में सच है। दूसरी बात मैं जो कहना, एक बात मैंने ये कही कि हम अपना विवेक, और ये ध्यान रखें कि विवेक का मतलब है बाय डेफिनेशन यूनिवर्सल ट्रेजर फ्रॉम विच वी कैन लर्न एंड वी कैन इम्प्रूव अपॉन। तो इसका हम उपयोग करें और इंटेलिजेंट स्टुपिडिटी का शिकार बनने से या उसके सहभागी बनने से इनकार करें। दूसरी चीज़ जो मुझे कहनी है अंत में वो ये कि जाहिर है कि हम साधारण लोग हैं, हम में से हमारे पास कोई पावर नहीं है, हमारे पास कोई हैसियत नहीं है। लेकिन अगर ये बात हम ध्यान रखें तो जब भी थोड़ी बहुत पावर और हैसियत हासिल हो तो आप कुछ कर सकते हैं। आप वाइस चांसलर हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप जैसे मेरे बारे में कहा गया यूपीएससी के मेंबर हैं, या ऐसी कोई पोजीशन है, तो आप सारी सीमाओं के बावजूद अपने इस विवेक का थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट अपने काम में कर सकते हैं, और ये मानते हुए कर सकते हैं। और यहाँ मैं वो बात सुनाना चाहता हूँ जो मैं कई जगह कह चुका हूँ, हो सकता है आपने से कुछ ने सुनी भी हो, बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड एवरीथिंग। मुझे नहीं पता कि ये रामायण के किस संस्करण में है, लेकिन ये कथा मैंने बचपन में कहीं सुनी थी, ग्वालियर में ही, और ये बहुत ही मार्मिक कथा है। वाल्मीकि रामायण या तुलसीदास की मानस में ये कथा नहीं है। हो सकता है उड़िया रामायण में हो सकता है बांग्ला रामायण में हो, किसी रामायण में हो, लेकिन कथा बहुत मार्मिक है। और कथा ये है कि जब समुद्र पर सेतु बन रहा था, पुल बन रहा था, इंसिडेंटली आपकी संस्था का नाम बहुत शानदार है, एजुकेशन ट्रेडिशन के बीच में सेतु। ये सेतु बनाना सबसे ज़्यादा जरूरी है और इसी में एजुकेशन की सार्थकता है। तो आप लोगों ने संस्था का ये नाम रखा है, इसके लिए आप लोगों को बधाई, आपका अभिनंदन। और तो जब ये सेतु बन रहा था तो भगवान राम ने देखा कि गिलहरी है, वो रेत में लोट लगाती है, फिर जाके उन पत्थरों पर लोट लगाने लगती है जो रखे जा रहे हैं वहाँ वानरों के द्वारा। वो आती है, रेत में लोट लगाती है, उन पत्थरों पर लोट लगाती है। तो रामचंद्र जी को बड़ा अजीब लगा कि कर क्या रही है। उन्होंने उसको उठा के अपनी हथेली पे लिया और पूछा उससे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या तुम कर रही हो, अजीब बात तो समझ नहीं आ रहा। तो उस कथा के अनुसार गिलहरी जो उत्तर देती है वो हम सबके सीखने के लिए उत्तर है। कहती है, भगवान आप अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने जा रहे हैं, आपके पास एक से एक पराक्रमी योद्धा हैं, हनुमान हैं, अंगद हैं, सुग्रीव हैं, नल हैं, नील हैं, आप स्वयं तो खैर स्वयं अवतार हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मैं अपनी औकात के मुताबिक, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ, छोटी सी गिलहरी हूँ, लेकिन अपनी औकात के मुताबिक
अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में आपका योगदान करूं, तो जितनी रेत मेरी देह में समाती है उतनी ले जा करके मैं आपके पुल में डाल रही। हम सब जब ये सोचते हैं कि हमारे करने से क्या होगा और हम क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा सत्ता तंत्र है, भारत से लेके यूएस तक और ईरान से लेके रूस तक, हम इसमें क्या कर लेंगे, बड़े बड़े सत्ताधारी लोगों के बीच में और इतने कॉरपोरेट्स के बीच में हम क्या कर लेंगे। शायद हम कुछ ना कर सकें, लेकिन एक तो ये याद रखें कि हमारे किए का क्या नतीजा निकला ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जो हमने किया वो सही था या नहीं था, वो नैतिक था या नहीं था। और दूसरा ये याद रखें कि कितना भी तुच्छ क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो योगदान अपनी पीठ पर जितनी रेत हम भर के ले जा करके अन्याय के विरुद्ध संघर्ष में, सभ्यताओं के बीच बनने वाले सेतु के निर्माण में योगदान कर सकें, हमारे जीवन की सार्थकता उसमें होगी। बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत आभार।